Am I audible, guys? Okay. So, very welcome, all of you. Hope everybody is doing well. Today, we'll be discussing about the basics of answer writing. And though I wanted to cover, though it's a very, very important class from the exam point of view, but people tend to skip this class, believing that answer writing to kar lenge. And the strength shows that I was expecting good numbers today, but okay, we have students online, they'll be adding now. So, first of all, when we talk about the mains examination, you have to write 7 papers, and on an average you have to write 4,000 word in every paper. In fact, when we talk about the base building approach, that how you should develop your preparation from the very basics, primarily there are 3 things we advise. One is the NCRTs, which will cover your basics, the static part of GS, then the current affair, where you have to read the newspapers, and third is developing the writing skills. So you have to write around 28,000 word in matter of 3.5 days. अगर ऐसे में ले लें तो 2,000 वर्ड आपको लिखना है, तो you have to write 26,000 word. And answer writing is the most neglected part of preparation. मैं आपको बता रहा हूँ, right now there are 15,000 people giving mains. 14,000 कुछ नंबर है, let's say close to 15,000 people. Out of this 15,000 people जो mains का एग्जाम दे रहे हैं, barely 3 to 4,000 people are in competition. बाकी लोग competition से पहली बार हैं. From day one they are out of the competition. The reason is that most of them, or rather all of them, do not know how to write and communicate, even though they have cleared the prelims. और कुछ लोग उसमें ऐसे हैं जिन्होंने 3 साल 4 साल तैयारी के बाद प्रीलिम्स निकाला है, and they still are not writing, or they have not written enough. The question comes that UPSC क्या चाहता है? Now when you look at the notification of UPSC कहता है भी I want you to communicate effectively, and when you look at the notification, the purpose of the mains exam is to understand the candidate's intellectual traits and depth of understanding. किसी भी मुद्दे पे आपका understanding, intellect, your thought process, your convergence in thinking has to be checked. And rather than range of information and memory, यानी आपको याद कितना है या factually rote memorization based exam नहीं होता है. Though yes, we do have to study lot. काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ आपको याद भी करना पड़ता है, not in a technical term, but yes, there are subjects like history, there are subjects which involve a lot of factual information also. आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें निटिग्रिटीज होते हैं, जो टेक्निकलिटीज होती हैं वो याद करना पड़ता है, दो नॉट इन अ लिटरल सेंस, बट हाँ यू शुड बी एबल टू फिल्टर देम. तो यूपीएससी में आंसर राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का. एंड मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, देयर आर लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग मेंस राइट नाउ, और उनको ऑलमोस्ट सभी लोगों को आंसर राइटिंग आता है. और आता इसलिए है बिकॉज एज अ प्रोसेस वी मेड श्योर दैट दे वर राइटिंग रेगुलरली. तो अगर आपको यूपीएससी निकालना है, you have to develop the writing skills, and answer writing is the most inherent part of that. But एक इसमें बहुत सारे problems होते हैं. There are a lot of challenges that a student normally faces during answer writing. अब एक अच्छा आंसर क्या है, उसके pillars क्या हैं, कैसे लिखना है, how I should start, all these questions I'll be taking. और ये आज का basic session है 1 hour का, because I'll be taking 2 more sessions in the advance to cover the answer writing part. और फिर मैं आपको छोटा सा एक NCERT का क्वेश्चन दूंगा और उसको दिखाऊंगा, उससे मॉडल आंसर के थ्रू आई विल डिस्कस दैट एज वेल. सो चैलेंजेस क्या क्या है फ्रॉम ए एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. आंसर राइटिंग इज समथिंग दैट हमने कभी किया नहीं है. आंसर राइटिंग हमने कभी किया नहीं. क्यों नहीं किया आंसर राइटिंग? आंसर राइटिंग इसलिए नहीं किया बिकॉज कभी हमारे एजुकेशनल इकोसिस्टम में उसकी जरूरत नहीं पड़ी है. नेवर एवर वी हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट आवर अंडरस्टैंडिंग. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू रोट समथिंग ऑन योर ओन? कब आपने अपने से कुछ लिखा था? गाय पे निबंध लिखा है आपने? कितने लोगों ने गाय पे निबंध लिखा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन समथिंग, बट दैट वाज इन स्कूल आई बिलीव. अपने गांव के बारे में, शहर के बारे में लिखा होगा, एम आई राइट? बट उसके बाद तो नहीं लिखा, इट ऑल वैनिस्ड.
अगर वो प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा होता तो शायद मैं ये सेशन आपका नहीं ले रहा होता। सो एक बात अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लो, द डे यू डेवलप योर बेसिक स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जहां जैसी आपके कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है राइटिंग की, आप 90% कॉम्पिटिशन से आगे निकल जाते हो। बिकॉज सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है एस्पिरेंट के लिए, इट इज आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। आप एक कंफर्ट जोन से बाहर का एरिया है। एंड एज ह्यूमन नेचर, जो हमारा ह्यूमन नेचर होता है, हम कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। बट लाइफ में सक्सेस कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलती है। सो दिस इज मोस्टली आउटसाइड द कंफर्ट जोन। पढ़ना आसान है, बिकॉज जब पढ़ते हो तो कोई इसमें सवाल नहीं पूछ रहा है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। आप कह रहे हो मैं पढ़ रहा हूं, देयर इज जीरो अकाउंटेबिलिटी। कैसे मालूम होता है कि आप पढ़ रहे हो? हाउ डू वी नो दैट यू हैव रेड इफेक्टिवली? बताइए। कैसे मालूम हो कि आपने अच्छी पढ़ाई की है? हाउ डू वी नो दैट आपने आज जो पढ़ा है वो इफेक्टिव है? या दिन भर आपका सर सुबह 8 घंटे बैठे थे, सुबह शाम तक, घड़ी देखी, किताब देखा, फिर घड़ी देखी, फिर किताब देखा, ये चला है 8 घंटे, एंड दैट प्रूव्स दैट आई हैव डन वेल टुडे। द बेस्ट वे टू असेस योर अंडरस्टैंडिंग, योर एजुकेशनल लेवल या फिर योर नॉलेज इज टू टेस्ट इट, एंड दैट हैपेंस एट 2 लेवल्स। फर्स्ट इज, जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हो उसके टेस्ट लगाइए, एमसीक्यूज लगाइए, जो हम लोग वीकली हर वीक करते हैं। एम आई राइट? द आइडिया इज टू अट्यून दैट। मैं जब क्लासेस लेता हूँ इकोनॉमिक्स की या जब भी लूंगा, तो मैं ऑलमोस्ट हर क्लास में क्वेश्चन सॉल्व जरूर कराता हूँ। एटलीस्ट 5-7 क्वेश्चन मैं सॉल्व में कराऊंगा। एटलीस्ट बाई वीकली, ट्राई वीकली टेस्ट लेंगे। द रीजन इज दैट जो आप पढ़ रहे हो उसको टेस्ट करो। यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ कि आपने जो पढ़ा है वो कितना पढ़ा है, समझ में कितना आया है, इज इट इफेक्टिव और नॉट। सो ये हमारे कंफर्ट जोन से बाहर है, तो मैं करवा रहा हूं। अगर मैं ऐसे ही कह दूं जाओ टेस्ट करके आ जाना, तो बहुत कम लोग करेंगे। तो हमारी प्रिपरेशन में बहुत सारी चीजें कंफर्ट जोन के बाद होती हैं, एंड दैट इज वेयर एज अ मेंटर, एज अ चीफ मेंटर, एज अ डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, या फिर मेरा ये ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आप लोगों को मैं पुश करूं टुवर्ड्स द एरियाज वेयर यू आर लेस कंफर्टेबल और नॉट कंफर्टेबल। इट विल टेक सम टाइम, बट यू विल बी एबल टू ओवरकम। जिस दिन प्रीलिम्स निकलेगा और मेंस का आंसर लिखोगे, तो मेरी बातें जो मैं आज में बोल रहा हूँ याद आएंगी। राइट? तो दिस इज द फर्स्ट चैलेंज। सेकेंड इज, द सेकेंड चैलेंज जो बच्चे एस्पिरेंट्स फेस करते हैं, दैट इज लैक ऑफ कंटेंट। क्या फेस करते हैं? लैक ऑफ कंटेंट। अभी मैं आपसे कहूं कुछ लिखिए, आप कहो सर क्या लिखें? आपने जो पढ़ा है वो लिखिए। लेट्स से रेड अबाउट, आपने पॉलिटी का कोई टॉपिक पढ़ा है, या आपने न्यूज़पेपर पर कोई इशू पढ़ा है, एंड आपने कहा लिखिए इसके बारे में, एंड सडनली माइंड इज ब्लैंक। पढ़ा तो है, समझ भी है, बट कंटेंट को मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू, या फिर कंटेंट है ही नहीं है, लिमिटेड है। देयर इज अ फीलिंग दैट आई हैव वेरी लेस कंटेंट। हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू राइट? आप कैसे उम्मीद करते हो मैं लिखूं अगर मेरे पास बेसिक कंटेंट ही नहीं है? तो दूसरा कंटेंट का प्रॉब्लम होता है जो एवरी एस्पिरेंट फेस करता है, और आप लोग भी आई एम श्योर जब आंसर राइटिंग करते हो तो फेस करते हो, जब लिखोगे तो करोगे। एम आई राइट? द थर्ड प्रॉब्लम दैट एस्पिरेंट्स फेस इज दैट अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जाम की रिक्वायरमेंट बहुत स्पेसिफिक है। यूपीएससी आपको चाहता है दैट यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इन मैटर ऑफ 7 मिनट्स, 8 मिनट्स, 9 मिनट्स। एक टाइम बाउंड आपको कम्युनिकेशन करने की एबिलिटी को डेवलप करना है, एंड दैट इज समथिंग दैट वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर। आप पहले दिन लिखो, आपको आधे घंटे में आप 1 पेज लिखोगे, एंड देन दैट डे इटसेल्फ यू लीव, अरे नहीं ये बस का नहीं, इसको बाद में थोड़ा कंटेंट डेवलप हो जाए, थोड़ा पढ़ लें, ज्ञानी हो जाए, और ज्ञानी होते 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 ज्ञानी होते ही नहीं एग्जाम आ जाता है। फिर प्रीलिम नहीं निकला तो फिर आप प्रीलिम निकालने पे लग जाते हो, एंड दैट लूप ऑफ विशियस साइकिल ऑफ प्रिपरेशन में समवेयर मेंस या आंसर राइटिंग पूरा नेग्लेक्ट हो जाता है। बेटा मेरे मेंटरशिप ग्रुप में हम लोग का एक मेंटरशिप कोर्स चलता है, उसमें करीब 100 स्टूडेंट्स हैं, और एन एवरेज हम लोग हर साल 50-60 को लेते हैं, जितना हम हैंडल कर पाते हैं। और उसमें सारे वो बच्चे हैं जो दूसरी कोचिंग्स के हैं। आई विल नॉट नेम द कोचिंग, बट एवरी कोचिंग दैट यू नो ऑफ, उसके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, मेंटरशिप में ज्वाइन किए, एंड दे पे 60,000 रुपीज जस्ट टू गेट द मेंटरशिप। हम क्या कराते हैं? मैं वही कराता हूँ जो आपको करवा रहा हूँ डे 1 से, और वो 3 साल बाद वो काम कर रहे हैं, 2 साल के बाद कर रहे हैं, 4 years के बाद कर रहे हैं। दे हैव नॉट रेड द बेसिक्स, दे हैव नॉट फॉलोड बेसिक न्यूज़पेपर्स। वो गाइड के पीछे भागे हैं, समरी नोट्स के पीछे भाग रहे हैं। नहीं, डोंट डू दैट, अवॉइड इट। वो आएगा उसका समय, बट नॉट टुडे, आफ्टर 6 months, 8 months। यू विल थैंक मी फॉर दैट इन फ्यूचर। जिस दिन सिलेक्शन होगा आप मुझे थैंक करोगे, अपने आप को थैंक करोगे, आपने मैंने सर की बात करी, सुनी। कुछ लोग थैंक नहीं भी करेंगे, वो अपने आप को कोसेंगे कि उन्होंने बात तो सुनी बट माना नहीं।
सो कम्युनिकेशन, आप इमेजिन करिए, हाउ डू यू नो दैट यू आर नॉलेजेबल? आपने कहा सर हम अच्छा लिख सकते हैं, दैट शोज यू हैव नॉलेज। या अपनी बात कह सकते हैं, यू कैन कम्युनिकेट इट। आप बोल सकते हो, बोलने का मौका तो इंटरव्यू में मिलेगा, उससे पहले तो मिलेगा नहीं। सो व्हेन वी आर राइटिंग, अ लॉट विल चेंज। राइटिंग को हमें इनकलकेट करना एज अ मैटर ऑफ रूटीन प्रोसेस। चलते फिरते आपको लिखना आना चाहिए। मोमेंट इज इफ आई से राइट समथिंग ऑन अ टॉपिक जो आपने रिसेंटली पढ़ा है, तो आप तुरंत कलम उठाइए और शुरू कर दीजिए, दैट शुड बी द एटीट्यूड। और ये एटीट्यूड आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। आप कुछ अच्छी जगह आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, वो तो सेकेंडरी है, बट अच्छी जगह पहुंच जाओगे, ये मैं गारंटी देता हूं। बिकॉज उस प्रोसेस में आप बहुत कुछ सीखोगे। तो आंसर राइटिंग इज अ वेरी होलिस्टिक प्रोसेस, जहां हमें अपनी स्किल्स को डेवलप करना है टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। नाउ एस्पिरेंट जो तैयारी करते हैं, वो इसको नेग्लेक्ट इसलिए करते हैं, मेनली बिकॉज उनको पता नहीं है कैसे लिखना है, कैसे शुरू करना है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल करते कहते हैं सर हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। देन आई आस्क दैट हाउ मेनी आंसर्स यू हैव रिटन सो फार, तो कहते हैं सर 5। मैंने कहा पहले 200 आंसर लिखो, तब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू राइट, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू राइट इन अ टेस्ट सीरीज, जहां पे सीधे आपके 20 क्वेश्चन का पेपर आ जाएगा। आप आपका कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी विद इन अ मैटर ऑफ मोमेंट। आपने पहला पेपर लगाया, आपकी कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगी। आप पूरे 20 में से 6 सवाल लगाओगे, कहोगे अरे ये तो बस का नहीं है। और वो टेस्ट सीरीज, जो भी टेस्ट सीरीज का इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, उनको अच्छा खासा पैसा देके आप टेस्ट एक भी अटेम्प्ट नहीं करोगे। बट बिकॉज आप सीधे तीसरे पायदान पे जा रहे हो, पहला दूसरा पायदान आपने छोड़ दिया है, यू हैव नॉट डेवलप्ड द बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग, एंड यू हैव नॉट सेकंड इज एंड यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इनफ टू रीच दैट थ्रेशोल्ड। और हमें कुछ करना नहीं है। आई एक्सपेक्ट हाउ मच, आई एक्सपेक्ट 15 मिनट्स पर डे फॉर 6 days a week। 15 6 15 6 सही बताओ, 90 होता है? अच्छा ठीक है। तो 15 6 इज 90 विच मीन्स 1.5 आवर्स। आपको एवरेज 1 से 1.5 घंटा हर हफ्ते देने हैं, पर वीक। पॉसिबल लगता है? 4 घंटे तो गपशप में निकाल देते हैं, 5 घंटा 8 घंटा हफ्ते में, राइट? 15 मिनट्स पर डे, यू हैव टू मेक एन एफर्ट ऑन फॉर दैट। कैसे करना है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, मैं बताऊंगा। आज का आंसर राइटिंग का सेशन ये नहीं कि मैं आपको एकदम हाई फाई आंसर राइटिंग के बारे में बताऊं, वो एनीवे दैट विल आल्सो कम। बट टुडेज ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्कस द नुएंसेस ऑफ आंसर राइटिंग, कि हमें पहला दिन क्या करना है, पहला पिलर क्या करना है। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप आई शुड डू व्हेन आई हैव टू राइट? मुझे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? मान लीजिए मुझे आज ही लिखना है, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? एनीबॉडी मुझे कोई बताएगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आदित्य, गुरलीन, अंशिका, कनिका, कनिष्क, मृदुल, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? एनीबॉडी? फाइंडिंग कंटेंट। अच्छा ठीक है, कंटेंट कहां से आएगा? रीडिंग द क्वेश्चन, या रीडिंग जो जो टॉपिक पढ़ना है, एम आई राइट? कंटेंट वहीं से आएगा, ठीक है। तो व्हेन यू हैव टू राइट, तो राइटिंग के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। व्हाट इज द थिंग दैट यू रिक्वायर इन द राइटिंग पार्ट? सबसे पहले राइटिंग नहीं आएगा, सबसे पहले डेवलपिंग द थॉट प्रोसेस। किसी मुद्दे पे लिखना है तो उसका एक थॉट प्रोसेस आपको डेवलप करना है। जो मैं बता रहा हूँ लिख भी लो बेटा, है ना? यू शुड राइट ऑल्सो, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ आज याद है, कल भूल जाओगे। हम्म? वो लिखा रहेगा तो जब पढ़ोगे तो याद आएगा, सर ने ये कहानी कही थी। हम्म? ठीक है। सो डेवलपिंग अ थॉट प्रोसेस डेवलप कैसे होता है? लेट्स से आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, उस पर शिद्दत से डिस्कशन किया, यू यू नो यू ब्रूडिंग ओवर द टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, और फॉर दैट मैटर राइट्स के बारे में पढ़ा, या फिर किसी भी इशू पे आपने पढ़ाई करी। सो व्हेन यू रीडिंग अ टॉपिक, यू डेवलप द थॉट प्रोसेस ऑन दैट। बट इसमें इंटेंसिवली इन्वॉल्व होगा, और यहां पर आपको फॉलो क्या करना होगा? फॉलो वेरी बेसिक सोर्स। सबसे बेसिक सोर्स है न्यूज़पेपर्स एंड एनसीईआरटीज। नाउ न्यूज़पेपर्स माइट लुक हैवी टू यू, न्यूज़पेपर आपको टफ लगेगा। क्यों लगेगा? बिकॉज न्यूज़पेपर का लैंग्वेज भारी होता है। सो व्हाट यू डू हियर, यू रीड एनसीईआरटीज, आप एनसीईआरटी पढ़िए।
बट एनसीईआरटी पढ़ने का भी तरीका है. द एनसीईआरटी हैज टू बी रेड एटलीस्ट 3 to 4 आइटरेशंस, अदरवाइज आपका लैंग्वेज डेवलप नहीं होगा. 3 to 4 आइटरेशंस. तो आप 3 to 4 आइटरेशन कैसे डेवलप करोगे? आप किसी भी सब्जेक्ट को या टॉपिक को आप 2 बार 3 बार पढ़ोगे एंड ट्राई टू आस्क योरसेल्फ कि ये टॉपिक मुझे समझ में आ गया है. कैन आई राइट ऑन दिस टॉपिक? कोई भी छोटा सा मुद्दा, छोटा सा टॉपिक है. लेट्स से आपने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में कुछ पढ़ा, या आपने, आई एम अ टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, सो लेट्स से आपने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा या ग्रोथ के बारे में पढ़ा. अभी रिसेंटली पिछले 10 दिन से 2 महीने से काफी पॉवर्टी न्यूज में बार बार आ रहा है. तो लेट्स से आपने पॉवर्टी के बारे में पढ़ा, गरीबी के बारे में पढ़ा, एंड व्हेन यू रेड अ टॉपिक ऑन दैट, सो क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स, जो एनसीईआरटी का नाम इकोनॉमिक्स है, उसमें चैप्टर 3 है पॉवर्टी एज अ चैलेंज. वही सेम टॉपिक रिपीट होता है क्लास 11th की एनसीईआरटी चैप्टर 4 पॉवर्टी. तो जब उस चैप्टर को आप पढ़ोगे 1 बार 2 बार 3 बार, तो आपको समझ में आएगा, अच्छा अच्छा ये इसका मतलब ये होता है, एंड आई हैव टू राइट इन माई ओन लैंग्वेज. सो व्हेन यू आर रीडिंग द बेसिक सोर्स, जहां बहुत बेसिक डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, सिंपल इजी लैंग्वेज में, एकदम पानी की तरह जो एग्जाम डेफिनेशन आपको समझ आए, दिखे जो आपको, दैट इज हाउ यू शुड स्टार्ट. सो व्हेनेवर यू वांट टू राइट, बहुत बेसिक से स्टार्ट करिए. बेसिक एनसीईआरटी को ढंग से पढ़िए. मैं जो बच्चे मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, मैं उनको भी वही बताता हूँ जो आपको बता रहा हूँ, और वो लोग 4 साल तैयारी कर रहे हैं. कुछ लोग तो सिलेक्टेड भी हैं, उनको भी एनसीईआरटी पढ़ने को कहता हूँ सर आप वो सीधा बेसिक पे चले जाते हैं. मैंने कहा वही कमजोर है, लिखने में दिख रहा है मुझे, और ज्यादा समय नहीं देना है, थोड़ा समय देना है. उनके लिए तो और कम, आधे घंटे में हो जाएगा, 20 मिनट में हो जाएगा. आपने उसका बेसिक डेफिनेशन या बेसिक एक्सप्लेनेशन देखिए उसको. कैन यू राइट इन योर ओन लैंग्वेज? बिकॉज जब आप बार बार पढ़ोगे, यू अंडरस्टैंड, आप उसको समझते हो, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. फिर वो कॉन्सेप्चुअली आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है. देन यू एसिमुलेट दैट आइडिया, आपको ऑब्जॉर्व हो जाता है, समझ में आ जाता है. यू कैन डिफाइन इन योर ओन लैंग्वेज, अपने शब्दों में आप समझा पाते हो. बिकॉज आर्ट ऑफ राइटिंग विल डिपेंड ऑन हाउ वेल यू आर एबल टू राइट, और वो आपको अपने शब्दों में लिखने का एफर्ट करना होगा. यू हैव टू कॉन्वे का कॉन्शियस एफर्ट. कंफर्ट जोन के बाहर है. पढ़ना आसान है ना, किताब उठाया पढ़ लिया, जवाबदेही तय नहीं होती नहीं है, 2 चैप्टर पढ़ लिया, और टेस्ट देने की बात आएगी तो आप भागना शुरू कर दोगे. फिर टेस्ट में नंबर नहीं आएगा तो फिर अपने आप को कोसोगे. यू विल ब्लेम कि टीचर ने ढंग से नहीं समझाया है. सो दीज आर थिंग्स दैट हैव टू बी अंडरस्टूड. सो हमको क्या करना होगा? कोई भी चैप्टर बेसिक चीज को आप बार बार, जिस टॉपिक में लिखना चाहते हो, 2-3 बार पढ़ो उसको. एनसीईआरटी पढ़ो. मार्क माई वर्ड, मेरी ईमानदारी से मेरे शब्दों को 2-3 महीना मान लो. अगर तुम्हारी प्रिपरेशन का पेस, तुम्हारी प्रिपरेशन का डायरेक्शन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल नहीं पहुंच जाए तो बताना मुझे. एंड दिस आई एम टेलिंग बाय माई ओन एक्सपीरियंस, बिकॉज मैंने भी ये संघर्ष झेला था. हाउ टू राइट, हाउ टू स्टार्ट, एंड इट वॉज अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड. कुछ लोग इनेटली अच्छा लिखते हैं, इनेटली मतलब बाय बर्थ, बॉर्न. कुछ लोग जैसे, हाउ मेनी ऑफ यू रीड नॉवेल्स? आई वांट टू आस्क ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कितने लोग नॉवल पढ़ते हैं यहाँ पे? नॉवल कभी पढ़ा है? ठीक है, नॉवेल्स पढ़ते हैं तो उनको उनका वोकैबुलरी बेटर हो जाता है, उनका रिटेंशन बेटर हो जाता है, कॉम्प्रहेंशन इंप्रूव हो जाता है. कॉम्प्रहेंशन मतलब समझना, वो इंप्रूव हो जाता है. सो हमको बेसिक तरीका फॉलो करना होगा. यू फॉलो इट प्रॉपरली. कैसे फॉलो करोगे? आप सीधा बेसिक सोर्स को बार बार पढ़ो, मल्टीपल आइट्रेशन, 2 बार 3 बार, एंड फोकस ऑन कैन आई राइट इट ऑन माई ओन लैंग्वेज, एंड देन स्टार्ट. दूसरा एक और है, स्टार्ट विथ बेसिक डेफिनेशन. ठीक है, आप जब करोगे देन स्टार्ट विथ बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करो. कैन यू राइट इन योर ओन लैंग्वेज? कोई भी शब्द, कोई भी टॉपिक. ना लेट मी आस्क अ टॉपिक. व्हाट इज पॉवर्टी? गरीबी क्या है? कैन यू डिफाइन इन 2 लाइन्स?
Online students, can you define? Yes. Okay. A person not able to fulfill their basic needs. Okay. Or anybody else? गरीबी क्या है? कौन है गरीब? हाउ डू आइडेंटिफाई पुअर? हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स. Lack of resources. Okay. So poverty is a state where individuals are unable to meet their basic needs for survival. It could be food, non-food. It is manifested by hunger, malnutrition, lack of access of resources. And currently, as per the data of World Bank, the poverty has declined from 27% to 5% in last 1 decade. अब ये कैसे मुझे पता? बिकॉज पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाता है, अपने शब्दों में बोल रहे हैं. इसका कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन भी बता सकता हूं मैं, है ना. Poverty is a multidimensional phenomena which relates with, chronic deprivation of access of resources, and it leads to, multidimensional challenges of x y z y. ऐसे करके आप कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन भी बना सकते हैं. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको शुरुआत कहीं से शुरू करना है, एंड दैट इज वेयर ऑलवेज रीड द प्राइमरी सोर्स सो मेनी टाइम्स दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो. नाउ दिस माइट लुक वेरी बेसिक टू यू, बहुत बेसिक आपको लगेगा, लेकिन आप इस पे जब काम करोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू राइट द आंसर? पहला स्टेप लिखने का क्या होना चाहिए? पढ़िए, रीड प्रॉपरली, ट्राई टू डिफाइन इन योर ओन लैंग्वेज. अपने शब्दों में डिफाइन कर रख दीजिए उसको, अभी के लिए नहीं है, रख दीजिए उसको. इट इज आई डिस्कस दिस विद यू. ठीक है, पहले यूपीएससी की रिक्वायरमेंट बाद में, पहले तो लिखने के बारे में बात करें ना. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? डू आई मेक सेंस? और जिन्होंने लिखने का कोई प्रयास करेंगे उनको ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा, और जिन्होंने प्रयास नहीं किया उनके लिए तो खैर व्हेन दे विल ट्राई दे विल अंडरस्टैंड दिस बेटर. ओके, सो राइटिंग के लिए आपको क्या करना होगा? स्टार्ट विद वेरी बेसिक डेफिनेशन, प्राइमरी सोर्सेज को पढ़िए, रीड करिए, एंड व्हेनेवर यू रीडिंग ऑब्जर्व, सी हाउ सेंटेंसेस आर बीइंग फ्रेम्ड, लैंग्वेज कैसे बन रहा है, ग्रामर कैसे है, सेंटेंस ऑब्जर्व करिए, रीड भी करिए, ऑब्जर्व भी करिए. याद मत करिए, जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व इट. आपको पता नहीं चलेगा. ये जो आपका दिमाग है ना, ये बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल वेपन है. प्रॉब्लम ये कि दिमाग आपका चल नहीं रहा है, ये दिमाग में ठहराव नहीं है. देयर आर टू मच डिसिपेशन ऑफ एनर्जी विच इज हैपनिंग राइट नाउ इन योर माइंड. यहां हो, यहां नहीं भी हो, ये चल रहा है, वो चल रहा है, कॉन्स्टेंटली कहीं डिस्ट्रैक्शंस है. जैसे मैं पढ़ाता हूँ, दरवाजा खुलता सब देखते हैं उधर, जैसे कि वहां से कोई कुछ तो निकलेगा, डायनासोर निकलेगा, rather than focusing on what I am saying. अटेंशन स्पैन बहुत वीक है हमारा, तो मेमोरी, रिटेंशन, लर्निंग स्लो हो जाता है. कॉन्शियसली आपको एफर्ट करना होगा जहां पे लर्निंग इंप्रूव हो. ये पार्ट आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट इवेंचुअली दिस विल डेवलप. ओके, नाउ सो ये मेंस की रिक्वायरमेंट है. एक राइटिंग असेसमेंट टेस्ट. नाउ राइटिंग असेसमेंट टेस्ट एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन द वर्ल्ड. हर बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में राइटिंग असेसमेंट टेस्ट मैंडेटरी है, वो यूपीएससी हो या फॉरेन में जो कैट का एग्जाम हो उसमें भी एंड में होता है. देन यू हैव जीआरई, जीमैट जो इंटरनेशनल एग्जाम्स होते हैं. इवन जो एग्जाम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दूसरे भी एग्जाम्स होते हैं बी लेवल, या उनमें भी राइटिंग असेसमेंट टेस्ट आपका नॉर्मली चेक होता है. तो व्हेन यू आर डेवलपिंग दिस असेसमेंट टेस्ट, जब अपनी राइटिंग स्किल डेवलप कर रहे हो तो आप बहुत सारी चीज़ों को आप तैयार कर लेते हो, राइट? ठीक है, तो अब राइटिंग के लिए हमें क्या करना है? हमको अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है, अंडरस्टैंड करना है. हमको एनालिटिक, यू हैव टू वेरी एनालिटिकल इन योर अप्रोच, एनालाइज करना है. यू हैव टू हैव दैट. इसलिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इफेक्टिव हो जाती है. न्यूज़पेपर जब रेगुलर रीडिंग करते हो ना, तो आपका अननोइंगली एनालिटिकल स्किल डेवलप हो जाता है. आप, यू आर अ थिंकिंग पर्सन, कोरिलेटिंग, नहीं ये नहीं, ऐसे होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये हम ये करना चाहिए. यू आर एबल टू एनालाइज थिंग्स, इंटरप्रेट थिंग्स इन योर ओन लैंग्वेज. नाउ दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, वो धीरे धीरे डेवलप होता है. इट विल टेक टाइम. ओके, सो हमको अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अपने शब्दों में समझाना आना चाहिए. नाउ अगेन दिस विल हैपन विद मल्टीपल रीडिंग, मल्टीपल टाइम्स जब आप उसको देखोगे. यूपीएससी इज अबाउट रिपीटेशन.
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फैलाने, हम लोग ज़्यादा के चक्कर में रहते हैं, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन कन्वर्जिंग थिंग्स। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सोर्सेज को लिमिटेड रखो इन द बिगनिंग। बाद में आपको जब आपका स्किल डेवलप हो जाएगा देन आपका पढ़ने का स्पीड भी बढ़ जाएगा। ओके, देन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी अपनी बात अपने शब्दों में लिखना है। डू यू थिंक दैट करंट स्ट्रैटेजी of employment incentive will help to create jobs as envisioned in the budget 2025-26? क्या आपको लगता है कि सरकार की जो नई नीति है जिसके तहत सरकार एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव कंपनियों को दे रही है उससे हमारे देश में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी? नाउ दिस इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अभी गवर्नमेंट ने आज ही कल ही एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया है जिसमें गवर्नमेंट करोड़ों जॉब क्रिएट करना चाहती है। और मैं करंट न्यूज से आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। डू यू थिंक, मतलब मैं आपका विचार पूछ रहा हूँ, बिकॉज गवर्नमेंट तो क्लेम कर रही है कि हम इतने जॉब क्रिएट कर देंगे। नाउ व्हेन यू हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी या चीजें कैसे वर्क करती हैं तो आप कहोगे नहीं नहीं ये तो मुश्किल लगता है, बिकॉज ABCD रीजंस हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमारे अंदर वो क्षमता डेवलप करनी होगी बेटा, और वो रेगुलर रीडिंग से आएगा। और रीडिंग जब ज्यादा होगी तो रेगुलर नहीं हो पाएगी और इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। तो रीडिंग कम अच्छे से करना है शुरू में। पहले अपने चाकू को शार्पन करो, चाकू की धार बढ़ाओ, अपनी स्पीड को बढ़ाओ। रीडिंग स्पीड, योर रीडिंग स्पीड बहुत जरूरी हो जाती है। राइटिंग स्पीड विल डिपेंड ऑन द रीडिंग स्पीड एंड डेवलपिंग एनालिटिकल स्किल्स। आज एक छोटा सा प्रैक्टिस करना घर जाके, एंड यू कैन डू इट ऑन फॉर द नेक्स्ट 1 वीक, और मुझे बताना है, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू टेल मी। आप जब न्यूज़पेपर कहीं पढ़ते हो या कोई भी इशू पढ़ रहे हो तो जस्ट सी हाउ मेनी वर्ड्स यू आर रीडिंग पर मिनट। हर मिनट में कितने शब्द आप पढ़ पा रहे हो। मैं आपको बताऊं, एवरेज आपकी रीडिंग स्पीड 50 to 70 वर्ड्स होगी, एवरेज, नॉट मोर देन दैट। यू नो व्हाट इज माई रीडिंग स्पीड? 250 to 300 वर्ड्स पर मिनट। मेरी पढ़ने की क्षमता 250 से 300 वर्ड पर मिनट है। इसको कॉन्शियसली मैंने डेवलप किया है, एफर्ट करके। ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, आपके अंदर भी आ जाएगा विद इन अ मैटर ऑफ 6 months। देयर आर पीपल आई नो हु रीड 500 to 700 वर्ड्स पर मिनट। जो वोरेशियस रीडर हैं, जो नॉवल पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, उनकी रीडिंग स्पीड बहुत तेज होती है। क्यों? बिकॉज कॉन्स्टेंटली दे आर रीडिंग। उनका कॉम्प्रहेंशन अच्छा होता है, उनकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, रिटेंशन अच्छा होता है। बिकॉज रीडिंग तो ये कॉन्सेंट्रेटिंग, अभी रीड करोगे समझ में आएगा तभी तो आगे रीड करोगे, ये थोड़ी जबरदस्ती रीड करते रहोगे। आपने 2 लाइन पढ़ा, आपके दिमाग में पिक्चर बन जाता है जो पढ़ा है कि नहीं बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? तो रीडिंग स्पीड को बढ़ाना होगा। कैसे करना होगा? सेम चीज, प्रैक्टिस, मल्टीपल आइटरेशंस एंड कॉन्शियसली वर्किंग टू इंप्रूव दैट। यूपी जैसे हम लोग CSAT में कॉम्प्रहेंशन पढ़ते हैं तो रीडिंग स्पीड बहुत हेल्प करेगा, बट उसके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग रेगुलर करना होगा। प्राइमरी सोर्स को मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ेगा। हम लोग गाइड से पढ़ना चाहते हैं, शॉर्ट समरी मटेरियल मिल जाए, वो PDF में मिल जाए, सब प्रिंट आउट में मिल जाए, तो हमारा वो स्किल मिस हो जाता है। वो स्किल से बाद ये सारी रिक्वायर्ड है। यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो हमको अपनी रीडिंग स्किल को डेवलप करना होगा एंड दैट विल टेक सम एफर्ट। तो आज कॉन्शियसली अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं कॉन्शियसली अपनी रीडिंग स्पीड को इंप्रूव करूंगा। रीडिंग करूंगा तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। जब रोज एक ही काम करेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा ना, नेचुरल सी बात है। बिकॉज आपका माइंड बहुत पावरफुल है, उसमें एक प्रोग्रामिंग हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट कोडिंग हो जाएगी और आपका स्पीड बढ़ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स कमिंग टू द UPSC पर से। आप अच्छा लिख पाते हो, आप कम्युनिकेट कर पाते हो, तो UPSC विल चेक योर केबिलिटी बिल्डिंग, आपकी लिखने की क्षमता कैसी है। एग्जामिनर आपको नहीं जानता है। अब मेरे सामने पेपर लेके आओगे एंड आई नो यू पर्सनली, हम रोज मिल रहे हैं, तो मेरा एक बायसनेस आपके थ्रू डेवलप, आपके प्रति डेवलप हो जाता है। मुझे पता है ये बच्चा अच्छा है, तो अगर मुझे 10 में से 3 नंबर देना होगा तो मैं 4 दे दूंगा, 3.5 दे दूंगा। एक बायसनेस है, बट दैट इज नॉट देयर व्हेन योर पेपर गोज फॉर द टू द एग्जामिनर। वहां एग्जामिनर आपको नहीं जानता है। और UPSC में आई नो पीपल जिन्होंने UPSC का जो एग्जाम है कम एफर्ट में निकाला है जस्ट बिकॉज दे हैड गुड राइटिंग स्किल। मेरा एक मित्र था, हम लोग साथ में जॉब भी करते थे, ऑफकोर्स इन डिफरेंट कंपनीज। उनका नाम था मित्र भानु महापात्रा, और हम लोग पुणे में थे। एंड उसकी तैयारी मेरे से करीब साल भर पहले स्टार्ट हुई थी, बट वी मेट एट अ प्लेस। एक टीचर मेंटर थे, वो गाइड करते थे, नॉट अ फॉर्मल कोचिंग। उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में UPSC क्रैक किया था
विद जॉब, एक भी दिन जॉब नहीं छोड़ा था। ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 109, ओडिशा का था तो ओडिशा का 8 मिल गया उसको, एंड राइट नाउ हिज एसएसपी देयर। क्या यूनिक था उसके बारे में? हिज राइटिंग स्किल वॉज एक्सेप्शनल। उसको लिखना आता था। जब पहली बार उसको लिखना देखा तो बड़ा अच्छा लिखता है भाई। तुरंत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, होता है ना हम लोग, कोई बगल वाला मित्र सडनली उसके टेस्ट में नंबर ज्यादा आ गए, लगते तो नहीं थे तुम ऐसे, हो कुछ और। देयर आर पीपल हु सरप्राइज यू, राइट? डोंट दे? लाइफ में कभी ऐसा हो आप सरप्राइज हुए हो जिसको उम्मीद नहीं कर रहे हो, अरे ये इतना अच्छा लिखता है, मुझे तो पता ही नहीं था। आप अपने आप से कह रहे हो, यू टेलिंग योरसेल्फ। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, मैं दिखा रहे ये चुपचाप शांत रहने वाला अच्छा, कोई मतलब नहीं आया, और राइट अप लिखा, टर इतना बढ़िया लिखा। इट वाज लाइक, फिर पता चला कि हाँ तैयारी काफी टाइम से हो रही है। फिर पता चला गवर्नमेंट, फादर उसके स्टेट सर्विसेज में गवर्नमेंट जॉब में है। तो मैंने पूछा तो कह रहे तो बहुत पहले से करता आ रहा हूँ मैं, बचपन में पिताजी ने सिखाया था। मैं अपने बेटे को राइटिंग स्किल अभी सिखा रहा हूँ। कई बार टास्क देता हूँ, आज तुम्हारा टास्क है या आज दिन भर जो किया उसके बारे में लिखोगे। आज हम लोग रेल म्यूजियम चल रहे हैं, शाम को आके रेल म्यूजियम का जो पूरा ट्रिप हुआ है वो अगले दिन तुम्हारा असाइनमेंट है, लिखना अपने शब्दों में। 4th क्लास में है, आते लिखता है, ग्रामर में गलती होती है, स्पेलिंग में गलती होती है, देन ही कम्स टू मी शोज, मैंने कहा देखो यहाँ ये गड़बड़ है। 2-3 साल के अंदर हिल बी अ गुड राइटर। और वो इकोसिस्टम सीख रहा है, ही इज ऑब्जर्विंग। अच्छा, अगली बार जब लिखेगा तो आप जब लिखते हो तो आप ऑब्जर्व करते हो, एनालाइज करते हो। तो राइटिंग इज अ प्रोसेस जहां बहुत सारी चीजें आप कर रहे हो। इट्स अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। इट बिकॉज व्हेन यू राइट आई नो हु यू आर, इट्स अ विंडो टू योर पर्सनैलिटी। आपकी सोच, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी स्ट्रेंथ, सब कुछ दिखता है। आप सोचो ना, यूपीएससी वांट्स टू नो हु यू आर एज अ पर्सन, इफेक्टिवली है कि नहीं है। और राइटिंग स्किल अगर अच्छी होगी, प्रीलिम्स बेटा निकालना है, बस प्रीलिम्स निकालना है, मेंस आराम से निकल जाएगा, बशर्ते सिलेबस आपका रेडी है। अब ये नहीं, सिलेबस भी तैयार होना चाहिए ना, कि नहीं राइटिंग स्किल अच्छा है तो कुछ भी लिख दोगे। अरे मैं पढ़ेगा तो यू हैव टू, कंटेंट तो होना चाहिए ना सब्जेक्ट में। जीएस में देयर आर 12 सब्जेक्ट्स, मेनी टाइम्स पीपल हैव गुड राइटिंग स्किल बट सिलेबस तैयार नहीं होता है तो मेंस नहीं निकलता है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 15,000 लोग के आसपास मेंस लोग दे रहे हैं, 10,000 पीपल आर ऑलरेडी आउट ऑफ द कंपटीशन, और वो कुछ भी कर लें, आप मुझे मिलवा दीजिए, मैं 2 मिनट में जज कर लूंगा इसका मेंस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। मैं नाम नहीं दे सकता हूँ, बट आई नो लॉट ऑफ माई ओन स्टूडेंट जिनको जो मेंस का एग्जाम दे रहे हैं उनका मेंस नहीं निकल रहा है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या यूनिक किया जाए कि इनका मेंस निकल जाए। अप्रोच ही अलग है, बट देयर आर पीपल जिनका मेंस निकल रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा ये लोग गलती ना करें ताकि मेंस डिस्टर्ब ना हो, राइट? तो यूपीएससी, आप बहुत सारे लोग कम एफर्ट में एग्जाम निकाल लेते हैं, कम टाइम देते हैं, बिकॉज दे हैव गुड राइटिंग स्किल्स, शार्प राइटिंग स्किल्स, एक्सेप्शनल राइटिंग स्किल। अपनी बात तो कह पाते हैं कम शब्दों में। एक शेक्सपियर की कहावत है, देयर इज अ प्ले कॉल्ड मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक स्टेटमेंट है, द ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, मतलब ब्रेविटी मतलब कम शब्दों में, सोल ऑफ विट, विट मतलब इंटेलिजेंस। अगर कम शब्दों में अपनी बात कह पाते हो, दैट इज अ टेस्ट ऑफ योर इंटेलिजेंस। यूपीएससी चाहता है कि आप अपनी बातों को कम शब्दों में आपको लिखना आ जाए। दे वॉन्ट यू टू टेस्ट योर राइटिंग स्किल इन मैटर ऑफ 7 मिनट्स। दे वॉन्ट यू टू राइट इफेक्टिवली इन 10 मिनट्स। आपको 20 सवाल मैटर ऑफ 3 आवर्स में लिखना है, इफेक्टिवली यू गेट 9 मिनट्स पर क्वेश्चन। ये स्किल है, आर्ट भी है, इसको विद एफर्ट डेवलप किया जा सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छा 12th में नंबर पाया तो वो ज़्यादा अच्छा डेवलप कर लेगा, ऐसा नहीं है। इवन पीपल विद वेरी एवरेज बैकग्राउंड कैन डेवलप गुड राइटिंग स्किल्स, उसमें एफर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, सो लॉट ऑफ पीपल कैन डू दैट। अब एग्जाम, आप मान लीजिए आपका आंसर कॉपी है, अब जैसे मान लो यही टेस्ट है ना, दीज आर टेस्ट, हमारे छोटे छोटे मेंटरशिप के मिनी टेस्ट होते हैं, ये तो मिनी टेस्ट है, 5 क्वेश्चन वाले, 10 क्वेश्चन वाले, दीज आर टेस्ट रेगुलरली बच्चे यहाँ पे आके लिखते हैं। अब ये टेस्ट लिखते हैं तो इसमें बच्चे अपने आंसर्स लिखेंगे, एस्से लिखेंगे, राइट? आप लोग हर वीक कुछ ना कुछ इस तरह के टेस्ट देते हो यहाँ पे। अब ये जो टेस्ट आप लिख रहे हो, इस टेस्ट के थ्रू आपका राइटिंग स्किल चेक होता है। नाउ व्हेन यू राइटिंग दीज टेस्ट, जब ये टेस्ट आप लिख रहे हो तो एग्जामिनर आपको नहीं जानता है। यहाँ तो ठीक है आपका नाम लिखा हुआ है, बट एज अ पर्सन वहाँ आपका रोल नंबर लिखा रहता है, नोबडी नोज हु यू आर।
एग्जामिनर को ये भी पता नहीं होगा कि ये मेरे रिश्तेदार का बच्चा है। अब बेटे का तो राइटिंग पता होगा या बेटी का तो पता होगा, बट लेट्स से सो इट्स तो एग्जामिनर किस बात पे आपको जज करेगा हु यू आर? बेस्ड ऑन व्हाट यू राइट। एग्जामिनर डज नॉट नो यू। तो आपके पास एक मौका मिला है एग्जामिनर को इंप्रेस करने का, टेलिंग द एग्जामिनर सी आई एम द पर्सन, जज मी बाय राइटिंग स्किल, मेरे राइटिंग स्किल से मुझे जज करिए। और विश्वास मानिए ये मौका वापस मिलेगा नहीं। देट इज ओनली वन टाइम टू इंप्रेस। उसी टाइम को सोचिए कैसे चीजों को अच्छा किया जाए, इफेक्टिव किया जाए। दैट इज द रिक्वायरमेंट। आपकी आंसर कॉपी कैसी होनी चाहिए, क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, आस्क योरसेल्फ। आप अपने आप से पूछो कि मेरा कैसा होना चाहिए राइटअप, एंड देन यू हैव टू मेक अ एफर्ट कि हाँ भाई उस राइटअप तक हमें पहुंचना है, तो हम कैसे पहुंचेंगे। ये बात बेटा अगर जल्दी समझ में आ जाएगी तो यूपीएससी जल्दी निकल जाएगा। एंड आई एम टेलिंग माई ओन एक्सपीरियंस। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं हर चीज़ को शॉर्ट में करने का सोचता हूँ आज भी। कम एफर्ट में आउटकम कैसे आया है। इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी हूँ, तो इकोनॉमिक्स का पहला रूल है ऑप्टिमाइज द रिसोर्सेज एंड टाइम इज अ रिसोर्स। अपने पास जो रिसोर्सेज हैं उसको इफेक्टिवली यूज करिए, उनको ऑप्टिमाइज करिए। एंड टाइम इज अ रिसोर्स, क्योंकि हम पढ़ाई में हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो टाइम एक रिसोर्स है, तो उसको इफेक्टिवली हमें यूज करना है। सो आप कम टाइम में कम एफर्ट में कैसे वहां पहुंच सकते हैं, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू आस्क एंड यू हैव टू सीक। नाउ टेक्निकली यूपीएससी के हिसाब से अगर हम बात करें, इन जनरल कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो यू हैव टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके डिमांड क्या है। ठीक है, कंटेंट, डू आई हैव कंटेंट टू राइट, अगला सवाल। पहले तो ये क्वेश्चन समझते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। कोई भी सवाल पूछा गया, लेट्स से मैंने आपको कहा डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड सजेस्ट सूटेबल मेजर टू ओवरकम पॉवर्टी। मैंने ये सवाल भी वही दिया हुआ है कि आप पॉवर्टी कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करिए और आप तरीके बताइए जिससे हम गरीबी को ओवरकम कर पाए। कॉमन क्वेश्चन है, आप इसमें सोच सकते हैं गरीब कौन है जिसके पास बेसिक रिसोर्स नहीं है अपने सर्वाइवल के लिए। एम आई राइट? तो हमारे पास कंटेंट है कि नहीं। अब जब दोनों चीजें हैं, लेट्स से यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन एंड यू हैव कंटेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि हाँ भी अब कैसे लिखना है, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, पहली लाइन क्या होनी चाहिए, पहला शब्द क्या होना चाहिए, डेफिनेशन से स्टार्ट करें, डेटा से स्टार्ट करें, डू आई हैव डेटा और डेफिनेशन और नॉट, क्या मेरे पास इतने हथियार हैं उस आंसर के लिए जो मैं इसको अच्छा लिख पाऊं, और अगर नहीं है तो मे बी आई नॉट राइट, या जितना है उतने से ही लिखें। एम आई राइट? ओके, स्पीड, डू आई हैव स्पीड, कैन आई राइट इन अ टाइम बाउंड मैनर, बिकॉज इवेंचुअली यूपीएससी प्रिपरेशन इज अबाउट स्पीड ऑल्सो, कम टाइम में करना है। इनोवेशन, मैं इनोवेट क्या करूं। आपने देखा है आजकल क्या ना, हम लोग एक ऑप्टिक्स के जमाने में रह रहे हैं, पहले इतना नहीं था। आप नोट से पीडीएफ देखो, उसमें 4 कलर से हो रहा है, हम लोग डिजिटल बोर्ड पे लिखते हैं तो 5 कलर से लिखते हैं। ऑप्टिक्स का जमाना है, जो दिख रहा है, जो दिखाना है, वही बात को अच्छे से दिखाना है। वो मास्टर शेफ देखा है आपने? देखा है प्रेजेंटेशन पे कितना फोकस होता है, ऐसा लगता है कि बस को खा लेंगे तो दुनिया मेरी अच्छी हो जाएगी। प्रेजेंटेशन, लुक एंड फील ऑफ द आंसर, लुक एंड फील ऑफ द थिंग्स दैट यू आर राइटिंग। ये नहीं कि लिखा और आप ही को नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा। होता है ऐसा कई बार, राइट? ओके, सो इस पर हमें काम करना होगा। तो नॉर्मली एक अच्छे आंसर के 3 पार्ट होंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। स्ट्रक्चर में कि स्ट्रक्चर ये होगा, पहले आप क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करोगे, फिर उसके बारे में लिखोगे, एंड देन यू कंक्लूड। सो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ एनी आंसर, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ये आपको सबको पता है, ये कॉमन सेंस है, स्कूल में सिखाया गया था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब द फर्स्ट थिंग इज कि इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, हाउ डू यू स्टार्ट द आंसर, इंट्रोड्यूस द आंसर। अब इसके लिए मैं जो क्वेश्चन आपको मैंने असाइनमेंट में दे रखा है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको पीडीएफ मिला है बेटा, हैव यू गॉट द पीडीएफ? पीडीएफ मिला है आपको, उसमें मैंने एक मॉडल आंसर शेयर किया है। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी। इसमें मैंने क्वेश्चंस क्या लिखा है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, सजेस्ट सूटेबल पॉवर्टी एलिवेशन मेजर। मैंने एक बहुत बेसिक एनसीईआरटी का सवाल दिया ताकि जो लोग इसके बारे में मतलब पढ़े नहीं हो वो लोग भी इस बारे में सोच पाए। गरीबी क्या है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वो समझाइए।
और गरीबी को ओवरकम करने के तरीके क्या हैं, यू नो. सो लेट्स बिफोर गोइंग अहेड लेट मी आस्क व्हाट इज पॉवर्टी. आपने ऑलरेडी बताया है पॉवर्टी मतलब लैक ऑफ इनकम है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, लैक ऑफ रिसोर्सेज टू मीट योर बेसिक नीड. हमारे पास वो संसाधन नहीं जिससे हम अपनी बेसिक नीड्स को मीट कर पाए. फूड होगा, नॉन फूड होगा. इट इज़ मैनिफेस्टेड बाय हंगर, मैल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ गुड एजुकेशन, हेल्थ. ओके, तो इस तरीके से हम जज कर सकते हैं गरीब कोई है कि नहीं है, उसके पास घर नहीं है या लिमिटेड घर है. पॉवर्टी इज ऑल्सो अबाउट लैक ऑफ फ्रीडम. फ्रीडम नहीं है. आप यहां बैठे हो, आपके मन में टेंशन है कि शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा. इस बात का टेंशन है. कितने लोगों को टेंशन है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव टेंशन कि शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किसी को नहीं है. बट गरीब सोच रहा है कि शाम को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा करें कि आज का खाने का इंतजाम हो जाए. उसकी रिक्वायरमेंट बहुत बेसिक है. आवर रिक्वायरमेंट इज मच बियॉन्ड द बेसिक. सो अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पॉवर्टी क्या है वो भी समझना बहुत जरूरी है. यू हैव टू अंडरस्टैंड. खैर, तो मैं वही कह रहा हूं कि यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होंगे ना वो बहुत शुरू में बहुत सिंपल आपको सवाल से शुरू करना है. तो इसमें इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? लेट्स से यही सवाल है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा? तो इंट्रोडक्शन में आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे. सबसे इजी तरीका क्या है? यू कैन डिफाइन द पॉवर्टी. पॉवर्टी को डिफाइन कर दीजिए, समझा दीजिए अपने शब्दों में. कहीं भी कोई सवाल आए, उसके जो कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफाई कीवर्ड्स. तो आप क्या करिए, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करिए. किसी भी क्वेश्चन के कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करिए ना. यहां पे कीवर्ड क्या है? पॉवर्टी एक कीवर्ड है, ठीक है. इंडियन कॉन्टेक्स्ट से दूसरा कीवर्ड कि पॉवर्टी आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट समझाना है. एंड यू हैव टू टेल कि भी पॉवर्टी एलिवेशन मेजर्स क्या है. तीन, बेसिकली देयर आर थ्री कीवर्ड्स: पॉवर्टी, इंडिया एंड द मेथड टू ओवरकम पॉवर्टी. गरीबी को कैसे ओवरकम किया जाए. अब पॉवर्टी तो पता है, अब मुझे बताइए कि पॉवर्टी को ओवरकम करना है तो कैसे कर सकते हैं. हाउ कैन वी ओवरकम पॉवर्टी इन इंडिया? स्किल को डेवलप कर लें. अभी आप स्किलफुल यूपीएससी की तैयारी करोगे तो स्किलफुल हो जाओगे, और स्किलफुल होगे तो एग्जाम निकाल दोगे. हाँ, एम्प्लॉयमेंट दे दें, ठीक है. गरीबी कैसे कम करेंगे? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर दो. इन्होंने कहा स्किल दे दो. और कुछ? एजुकेशन अच्छा दे दो. एजुकेशन हेल्थ पे फोकस करो. आप यहां क्यों बैठे हो? विद्वान सर्वत्र पूजते. क्यों? वो एजुकेटेड है, अवेयर है, नॉलेजेबल है. आप अपने आप को एजुकेट करोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी. फिर उसको मोनेटाइज कर सकते हो, उसको बेच सकते हो. मतलब मोनेटाइज मींस उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो. एम आई राइट? स्किल, एजुकेशन, हेल्थ. हेल्थ जरूरी है. पुअर का द पुअर पीपल हैव पुअर हेल्थ बिकॉज पैसा नहीं है. लैक ऑफ एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटी है. अच्छा, पैसा नहीं है तो खाना भी अच्छा नहीं मिलता है, तो न्यूट्रिशन वीक है, तो दे हैव पुअर न्यूट्रिशन. सरकारी इनकी स्कीमों के तहत हमको फूड सिक्योरिटी दें, अच्छा फूड दें, ये भी होता है. एम आई राइट? सो सोल्यूशन आपके सामने है. आसपास घूमो, देखोगे, अरे सरकार इतना सारी चीजें गरीब, अफोर्डेबल हाउसिंग गरीबों को देती है सरकार. एम आई राइट? बेनिफिट्स आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है. स्कॉलरशिप बच्चों को देती है. हम लोग तो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ के आए हैं मोस्टली, बट लॉट ऑफ पीपल आर इन गवर्नमेंट स्कूल. सरकार वहाँ तो हाथ जोड़ के आती है, आओ पढ़ो, आओ चले भारत बढ़े भारत, आओ आओ. सर्व शिक्षा अभियान में आपको बुलाती है, हाथ जोड़ के बुलाती है. टीचर के ऊपर प्रेशर है कि अपने स्कूल में एडमिशन कराएं. उसके बाद आपको बुक्स फ्री देगी सरकार, बैग फ्री देगी, है ना, आपको सब कुछ देगी. फिर खाना भी बुलाई खिलाएगी. होता है ना, मिड डे मील स्कीम होता है, पता है ना. और फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो. सो दीज आर वेज टू एलिवेट पॉवर्टी इन इंडिया. तो कहने का मतलब बातें वही है. तो डिफाइन पॉवर्टी, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के अराउंड आइडेंटिफाई कीवर्ड्स और उन्हीं को एक्सप्लेन किया जा सकता है. अगर आपके पास डेटा फैक्ट है, कैन बी यूज्ड. हाँ कनिष्क का बताइए. पीडीएफ नहीं मिला है? ओके ओके, ठीक है. पीडीएफ बेटा ग्रुप पे शेयर हो जाएगा.
ठीक है, उठाइए और बेसिक लेवल समझाइए। आगे से छोटा छोटा प्रैक्टिस करिएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। इट विल टेक फ्यू डेज, मे बी अ मंथ, बट आपकी राइटिंग स्किल डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपको। तो इंट्रोडक्शन में हम बहुत कम शब्दों में, 2-3 लाइन में, द वन रूल हम लोग फॉलो करते हैं, 10% ऑफ द वर्ड लिमिट। ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हो, एक लाइन से स्टार्ट कर सकते हो, फैक्चुअल स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकते हो, डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो अपने शब्दों में। इनोवेट बाद में करना, अभी शुरू में लिखना शुरू करें। देन बॉडी, बॉडी में क्वेश्चन को समझाना है। बॉडी इज द मेन क्वेश्चन। जैसे पॉवर्टी को डिफाइन किया, फिर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाओ और पॉवर्टी एलिवेशन के मेजर बताओ, वो बॉडी में आ जाएगा। तो बॉडी में, इस क्वेश्चन में बॉडी में क्या आएगा, पॉवर्टी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और बॉडी में क्या आएगा, पॉवर्टी एलिवेशन मेजर्स। ये सब चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ, ये कहीं सिखाया नहीं जाता है कोचिंग में, बेटा ये सब सिखाना चाहिए। वो ऐसे बता देंगे ऊपर ऊपर, लेकिन उस पर एक प्रोसेस के थ्रू काम नहीं होता है, कंसिस्टेंटली अक्रॉस काम होना चाहिए, रेगुलर। और ज़्यादा नहीं, चीज़ों को बेसिक रखना है, शुरू में हैवी नहीं करना है, कीप इट वेरी बेसिक। 2-3 महीने बाद जब बेसिक लिखना शुरू जाओगे, तब आप नेक्स्ट लेवल पे जाना, और लिखोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यू लर्न बाय डूइंग। तो ये बॉडी हो गया आपका, और फिर होगा कंक्लूजन। व्हाट इज कंक्लूजन? कंक्लूजन में क्या होगा, इसका एक समरी दे दोगे, समरी ऑफ द एंटायर आंसर। मतलब कि पावर्टी इंडिया में, पावर्टी एलिवेट करना जरूरी है, इससे वेलफेयर ऑफ द नेशन इससे जुड़ा हुआ है, और भारत एक विकसित भारत बन पाएगा, ऐसे करके हम क्लोज कर देंगे। मतलब जो भी उसमें एक अच्छा वर्ड, अच्छा फ्रेमवर्क अप्रोच जो है हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैंने एक बहुत एग्जाम्पल लेमैन टर्म से आपको समझाया, और मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप आंसर राइटिंग से फेमिलियर हो जाओ। एंड इसको है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन हर वीक टेस्ट में देते हैं या देंगे, तो उसमें बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, आई एम श्योर हो रही होगी, है ना। बट जब करोगे तो चीज़ें अपने आप डेवलप हो जाएंगी। ना, एक अच्छे आंसर के कुछ पिलर होते हैं। इसको, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आंसर जो आपने दिया है उसको डिस्कस करेंगे, फिर मैं 1-2 टॉपर्स की कॉपी डिस्कस करूंगा, और फिर रोक दूंगा, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं लूंगा मैं। द आइडिया इज टू मेक यू फेमिलियर, क्योंकि इसमें एडवांस लेवल पे तब जाएंगे जब थोड़ा आप प्रैक्टिस करना सीख जाओगे। ओके, वी हैव टू प्रैक्टिस, एंड व्हेन यू प्रैक्टिस यू विल रीच देयर। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है यहाँ तक? आदित्य, अंशिका, गुरलीन, कनिष्क, मृदुल, सबको क्लियर है बेटा? व्हाट आर द पिलर्स ऑफ अ गुड आंसर? एक अच्छे आंसर के क्या क्या पिलर्स हैं? पहली बात तो डिटेल एंड बाउंड्री। ठीक है, आंसर व्हाट इज नीडेड, आंसर व्हाट इज, अब वही लिखो जो जरूरत है, नथिंग मोर नथिंग लेस। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूं। घर कहाँ है? शहर का नाम बताया। अब ये नहीं कि कहाँ जा रहे हो, तो अभी तो सोच रहे हैं, निकलेंगे तो मेट्रो पकड़ेंगे, तो वहां से फिर वहां जाएंगे, फिर बस लेंगे, पता नहीं ये वाली मिलेगी नहीं मिलेगी। अरे भैया, कहानी कहाँ सुना रहे हो, ये बताओ कहाँ जा रहे हो? घर। एग्जैक्टली, यूपीएससी कह रहा है, एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो, जो क्वेश्चन कह रहा है वही बताना है, नथिंग मोर नथिंग लेस। यूनिवर्सिटी एग्जाम में माहौल बनाने का जो एटीट्यूड है उसको छोड़ दीजिए। आदत होती है ना, सप्लीमेंट्री भरना है, अवॉइड दैट। यूपीएससी में सप्लीमेंट्री भरने पे नंबर नहीं मिलेगा, 2 पेज मिलते हैं टू राइट योर आंसर्स। ठीक है, अब दूसरी बात, द सेकेंड पिलर अगर हम देखते हैं,
तो रेशियो एंड बैलेंस, रेशियो एंड बैलेंस। जब क्वेश्चन के कई पार्ट होते हैं तो हमको बैलेंस करना होगा। व्हेन देयर आर, किस में होगा, बिटवीन सब पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, डायमेंशंस, आपके जो डायमेंशन है उसको भी डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन के तीन पार्ट हैं। जैसे इसमें क्या है, एक्सप्लेन पावर्टी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड पावर्टी एलिवेशन मेजर, दो पार्ट हैं, दोनों में बैलेंस होना चाहिए, आधा पार्ट वन आधा पार्ट टू। अब ये नहीं कि पार्ट वन लिखा और पार्ट टू भूल गए और फिर याद आया एंड में अरे पार्ट टू भी लिखना है, तो 3 लाइन, पहला पेज भी कम है, जगह भी कम है और टाइम भी खत्म हो गया। ठीक है, द थर्ड पिलर जो है आपका वो है ऑब्जेक्टिविटी, ऑथेंटिसिटी। थर्ड इज, व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी? जो हम कह रहे हैं उसको हम प्रूव कैसे करेंगे? देयर यू नीड व्हाट? फैक्ट एंड डेटा। जैसे आपने कहा कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूं, लेट्स से, तो मैं कैसे इस बात को मानूं? हाँ, मार्क्स, क्वालिटी, इन्होंने बोला सर आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई गॉट XYZ% इन माई एग्जाम और मेरी अच्छी सिटिंग कैपेसिटी है। यही तरीका है पहला, बेसिक लेवल पे। आप मेरे नंबर देख लीजिए, मैं एक डिसिप्लिन हूँ, मेरी कंसिस्टेंट रहा है मेरा परफॉर्मेंस। तो यही तरीके से तो आप डेटा से प्रूव करोगे ना। हाउ डू यू प्रूव? यूपीएससी के क्वेश्चन जो आया, कोई भी क्वेश्चन जो लिखोगे, यू विल प्रूव विद डेटा। ठीक है, तो पहला हो गया ऑब्जेक्टिविटी। अगला, द फोर्थ, फोर्थ क्या होगा? लैंग्वेज ऑफ द आंसर। इसको बोलेंगे लैंग्वेज एंड फ्लो, लैंग्वेज एंड, इसमें क्या आएगा? बेसिक ग्रामर, इंटरकनेक्शन, यानी जो लिख रहा है उसमें एक फ्लो है, इंटरकनेक्शन है। छोटे सेंटेंस के छोटे छोटे सेंटेंस लिखो, पैराग्राफ डिवाइड किया, यू नो, सो यहां पर आप डिवाइड इनटू पैराग्राफ। अब ये नहीं कि लाइन स्टार्ट हुआ तो खत्म ही नहीं हो रहा है, होता है कई बार, यू हैव टू राइट। तो लैंग्वेज फ्लो में इंटरकनेक्शन होगा, देयर इज अ लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द आइडियाज दैट यू हैव मेंशन्ड, एक कोहेरेंस है, क्लैरिटी, अच्छा अच्छा ऐसे स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहा है। देन स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, तो स्पेलिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी गलतियां नहीं होंगी, इस पर आपको कॉन्शियसली एफर्ट करना होगा। कुछ लोगों का ग्रामर कमजोर होता है, इंग्लिश कमजोर होती है, कोई बात नहीं, सीख लेंगे, 3 महीना लगेगा बस। Am I right? Then the last is presentation. Look and feel of the answer. Look and feel. कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर कैसा है, डायग्राम है, इनोवेशन है, वही बात को अच्छे से लिखा गया है। दोनों, बोथ हैव रिटन द सेम आंसर, बट इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, क्लीन है, जो सही की पॉइंट्स उन्होंने अंडरलाइन किया है, डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, इनको मैं 1 नंबर अधिक दूंगा, इनको 1 नंबर कम दूंगा। इन्होंने मेरा काम आसान कर दिया। तो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी। राइटिंग कैसी है, कई बार राइटिंग आपका नहीं भी, राइटिंग खराब भी हो तो चलेगा, राइटिंग पे जज नहीं करेंगे वो। सो एक आंसर के आप सोचो लॉजिकली, तो आपको वही लिखना है जो एग्जाम पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। सेकंड इज यू हैव टू क्रिएट द बैलेंस, मल्टीपल डायमेंशन। इस चीज को हम और समझेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिविटी इज, प्रिपरेशन इज ऑब्जेक्टिव,
आप एथिक्स का आंसर हो, जीएस का, पॉलिटी का आंसर हो, इकोनॉमी का आंसर हो, जहां जहां जो संभव है हम उसको हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। इकोनॉमी का आंसर में फैक्ट डेटा देंगे, पॉलिटी के आंसर में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देंगे, केस लॉज देंगे, एथिक्स के आंसर में कोर्ट दे सकते हैं, ऐसे में हम कोई रियल लाइफ स्टोरी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, राइट? सो दैट इज हाउ यू आर एबल टू प्रूव इट। देन लैंग्वेज एंड फ्लो, लिखने का ग्रामर, फ्लो, सेंटेंस कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक है कि नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ों पे आपको काम करना होगा, बिकॉज यू हैव टू राइट इन इंग्लिश, यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश, एंड लास्ट इज अ प्रेजेंटेशन। तो ये सारी बातों पे हम अगर काम करेंगे तो चीज़ें वर्क होंगी। अब आई विल शो यू सम कॉपी। हाँ, कौन टर्म्स? हाँ, वो तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड्स आप डालोगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ द फ्लो, दैट इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज। अब देखो ये टॉपर्स कॉपी है, शी इज आईपीएस राइट नाउ, हमारी हमारी स्टूडेंट थी। तो अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, पॉइंट लिखा, यहाँ देखो फैक्ट डेटा लिखा हुआ है, उस पांचों पिलर के बारे में बात करते हैं, डिटेल एंड बाउंड्री। इस क्वेश्चन में वही लिखना चाहिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा, इस क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, तो देखो यहाँ पार्ट 1 है, देन कम्स यहाँ पे फिर पार्ट 2 आपका चेंज होगा। ऑब्जेक्टिविटी, फैक्ट डेटा आपको मिलेगा, इन्होंने कहा गरीबी कम हुई है या ये हुआ है, तो उससे जुड़ा हुआ डेटा आपको मिल जाएगा, राइट? देन चौथा पिलर क्या था? लैंग्वेज एंड फ्लो। पढ़ के देखो, जस्ट सी रीड दिस, पढ़ के देखो। द इंटरसेक्शन ऑफ मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई at an equilibrium point is usually profit driven and suits the taste of suppliers and businesses more than that of consumer। अब इस सेंटेंस के साथ प्रॉब्लम भी है, बहुत लंबा सेंटेंस, छोटा होना चाहिए, इसलिए मैंने 5.5 नंबर दिए हैं, 6.5 नहीं दिए, 7 नहीं दिए। इस नंबर में अच्छा नंबर, ओके नंबर मिला है। ये सेंटेंस छोटा होना चाहिए, इन्होंने कॉम्प्लेक्स बना दिया, इट शुड बी सिंपलर, ठीक है। इट ऑफन एंड्स अप बीइंग कॉन्ट्रडिक्टरी टू द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एज वेलफेयर प्रोवाइडर एंड comprehensive planning in general। Contradiction क्या है? For instance, during 1950s, it was observed that private banks were offering loans only to haves and have-nots, and often women, poor, scheduled caste, scheduled tribes were being left out. Hence, 1969 government stepped in nationalization of banks। Language थोड़ी इंग्लिश पे काम किया तब यहाँ तक पहुंचा है। तो आप देखोगे तो खैर इसमें लैंग्वेज थोड़ा भारी है, छोटा लैंग्वेज भी लिखता तो भी चलता, लैंग्वेज थोड़ा भारी है, थोड़ा सिंपल लिखते तो भी चलता। और ये आंसर में वर्ड ज्यादा लिखे हैं, बट ठीक है, कुछ लोग का फ्लो होता है, दे टेंड टू राइट लाइक दैट। सो आप देखो, अंडरलाइनिंग किया है, फैक्ट डेटा लिखा है, एग्जाम्पल दिया है, ओके आप देखो। सो ऑब्जेक्टिविटी है इसके अंदर, लैंग्वेज है, फ्लो है, पॉइंट्स में लिखा है, स्ट्रक्चरिंग है, छोटे छोटे पैराग्राफ में चेंज किया है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, पहले से डिस्कस किया, फिर उसके बारे में लिखा, फिर उसको काउंटर किया, डेटा दिया, और एक ल्यूसिड प्रेजेंटेशन है, ओके। सो तो कहने का मतलब है कि एक टॉपर कॉपी का मैं ऐसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ डायग्राम भी हो सकते हैं, कई बार आप डायग्राम बनाते हो, समझाते हो डायग्राम के थ्रू, एग्जाम्पल देते हो, तो ये सारी चीज़ें, प्रेजेंटेशन देखो, इस तरह से हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो ये धीरे धीरे हम सीखेंगे, आज एक दिन में नहीं होगा, इवेंचुअली विल रीच हियर। सो मैं वही कह रहा हूँ कि आंसर राइटिंग में हमें ये सारे काम करने हैं। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एक अच्छे आंसर के मैंने पिलर्स डिस्कस किए। आई डिस्कस अबाउट द रीजन फॉर आंसर राइटिंग, हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग, देन वी डिस्कस अबाउट द पिलर्स ऑफ अ गुड आंसर, और फिर मैंने एक कॉपी दिखाया बच्चे का कि भी इस तरह के आंसर हमें लिखने हैं। आई हैव अ गुड कॉपीज, मेरे पास अच्छी अच्छी कॉपीज मेरे पास ही पड़ी हुई हैं, मैं स्कैन कर रखवा लेता हूँ ताकि बच्चे आगे देखें। बट इंटरनेट पे आज क्या है, आप टॉपर कॉपी डालोगे तो खूब मिल जाएगा मटेरियल, पहले ऑप्शन लिमिटेड था, अब तो बच्चे खुद ही अपनी कॉपी डाल देते हैं इंटरनेट पे, वेबसाइट पे, बहुत जगह पे, टेलीग्राम चैनल्स पे। खैर उसको पीएचडी मत करना, बट बेसिक लेवल पे उसको देखना है, ओके। नॉर्मली प्रॉब्लम्स क्या, कॉमन प्रॉब्लम्स बच्चे जो करते हैं
वो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन समझ पाते नहीं हैं, क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाते हैं, दे डोंट हैव द कंटेंट। तो जब लिखने से पहले थोड़ा अपने ऊपर होमवर्क कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना उस टॉपिक को, रीड इट प्रॉपरली, रिवाइज थोड़ा कर लेना, ताकि लिखने के टाइम यू हैव सम बेसिक कंटेंट। और फिर जब हथियार होगा तब तो लड़ोगे। अब हाथ हाथ से थोड़ी लड़ोगे, अब कोई 100 मीटर दूर खड़ा है कि नहीं हाथ से ही मार दूंगा इसको मैं, ये तो संभव नहीं है। यू नीड टू हैव द रिक्विजिट वेपन टू हिट दैट पर्सन, एम आई राइट? तो यहां भी एग्जैक्टली वही होगा, ठीक है ना। कैसे छोटे इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, और इसकी प्लानिंग भी करनी होगी। एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, आप आंसर लिखने से पहले यू कैन, आप आंसर की प्लानिंग कर सकते हो। राइट बिफोर राइटिंग, प्लानिंग ऑफ एन आंसर। ज्यादा नहीं, मे बी आप शुरू में 2 से 3 मिनट ले सकते हो कि प्लान करो कि लिखना क्या है। ओके, आप छोटा सा प्लान कर सकते हो कि पॉवर्टी का यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे, इसमें ये फैक्ट डालेंगे, आपने डाल दिया कि फैक्ट नीति आयोग का डालेंगे, वर्ल्ड बैंक का डालेंगे। फिर आप डिस्कस करोगे कि भी करंट डेटा, मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको समझाओगे। फिर पॉवर्टी एलिवेशन मेजर क्या क्या होंगे वो आप लिखोगे। पॉवर्टी एलिवेशन मेजर में आप कहोगे कि हाँ भी क्या क्या कोई कौन कौन सा है, तो आप ऐसे करो, मनरेगा डाल दूंगा, इन्होंने कहा स्किल डेवलपमेंट डाल दूंगा, अच्छा स्किल इंडिया डाल दूंगा, हाउसिंग में पीएम आवास योजना डाल दूंगा। ऐसे करके मैं सोचूंगा, आई कैन डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग, और वहाँ उसको उसके बारे में छोटा सा लिख भी सकता हूँ। कंक्लूजन में ये लिखूंगा कि वेलफेयर इज द नीड ऑफ द सोसाइटी एंड देयर बाई पॉवर्टी शुड बी एलिवेटेड इन मेजरेबल टर्म्स बाई कंसिडर्ड एफर्ट्स। ओके, ऐसा करके कुछ लिखूंगा। तो ऐसे आपने प्लान कर लिया, उससे क्या होगा, प्लानिंग विल टेक सम टाइम, बट एक टाइम आएगा कि आप रियल टाइम प्लानिंग करोगे, 20 सेकंड में सोच लोगे। विद प्रैक्टिस इट विल इंप्रूव। तो इन द बिगिनिंग ट्राई टू राइट वेरी सिंपल, बेसिक डेफिनेशन लिखने की कोशिश करिए, जो पढ़ा है उसके बारे में लिखिए। एक और अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ट्राई टू राइट द समरी ऑफ द न्यूज़पेपर इन योर ओन लैंग्वेज। कोई आर्टिकल पढ़ा उसके बारे में, यू कैन डू दैट, इट्स अ गुड प्रैक्टिस, बट टाइम लगता है शुरू में, और जब टाइम लगता है तो आप छोड़ देते हो, यू लीव इट। ओके, सो लेट्स सी, आपको जो असाइनमेंट जो पीडीएफ मिला है उसको देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, सजेस्ट सुटेबल पॉवर्टी एलिवेशन मेजर्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, व्हाई दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, हमेशा सवाल पूछिए अपने आप से, ये सवाल ये पूछ क्यों रहा है यूपीएससी, ऑलवेज द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड व्हाई। मैंने इस क्वेश्चन क्यों बनाया है, बिकॉज रिसेंटली ये न्यूज था, बिकॉज रिसेंट में वर्ल्ड बैंक का डेटा पॉवर्टी पर आया है। ठीक है, अब इसमें डिमांड है क्या, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तो कह रहे हैं भाई आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पॉवर्टी को डिस्कस करना है और गरीब पॉवर्टी एलिवेशन करने के मेजर बताना है। हाउ टू अप्रोच, एक डायरेक्टिव वर्ड इसमें क्या है, डायरेक्टिव वर्ड है डिस्कस, आपको डिस्कस करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कस, डिबेट ऑन पेपर, गोइंग थ्रू डिटेल्स ऑफ द इश्यूज कंसर्न्ड बाय एग्जामिनिंग ईच वन ऑफ देम। आपको डिटेल में जाना है इस क्वेश्चन के, डिस्कस हैज टू बी इन डिटेल। हाँ, वो अलग अलग है बेटा, छोड़ दो, उसके लिए अलग से सेशन लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना, फॉर दैट इट विल रिक्वायर एडवांस सेशन। फिलहाल जो आपको समझ में आता है उस हिसाब से आप लिखने की कोशिश करिए। अब इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, व्हाट यू विल राइट इन इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस द आंसर विद कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी कॉन्सेप्ट समझाइए, डेफिनेशन लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, फैक्ट लिखिए, इसके एनालिसिस करिए कि भारत के हिसाब से पॉवर्टी क्या है, और फिर कंक्लूड, और फिर यहाँ पे गवर्नमेंट मेजर के बारे में बात करिए, एंड कंक्लूड द आंसर बाय गिविंग इंपॉर्टेंस ऑफ मेजर्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। पॉवर्टी कम क्यों करना है इसके बारे में 2 लाइन लिख लीजिए। तो यहाँ पे आपको मे बी 2-3 लाइन्स लिखना है, यहाँ पे आपको 2-3 लाइन लिखना है, एंड हियर यू हैव टू राइट मे बी आपका 80% आंसर आपका बॉडी का पार्ट रहेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या लिखा हमने। लेट्स सी द मॉडल आंसर। मॉडल आंसर क्या कहता है, पॉवर्टी इज अ कंडीशन इन विच इंडिविजुअल और हाउस होल्ड लैक्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मीट द बेसिक मिनिमम नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। इससे बेसिक डेफिनेशन मैंने जानबूझ से सिंपल डेफिनेशन दिया है, कई जगह आप डालोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन मिलेगा। ट्रेडिशनली पॉवर्टी हैज बीन मेजर्ड बाय पॉवर्टी लाइन, भारत में पॉवर्टी लाइन के थ्रू हम पॉवर्टी मेजर करते हैं, गरीबी रेखा। पहले एक तेंदुलकर कमेटी था, फिर रंगराजन कमेटी आया, फिर नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स आया, और रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने जो डेटा रिलीज किया है वो है। तो हमारे पास 3-4 मेजर है जिससे हम पॉवर्टी को मेजर कर सकते हैं, और ये पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आप कितना खर्च कर रहे हो उस बेसिस पे पॉवर्टी लाइन को निकाला जाता है। जो गरीबी रेखा है, एक हम लोग पॉवर्टी लाइन डिफाइन कर देते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक का पॉवर्टी लाइन है $3, यानी जो $3 से अधिक कमा रहा है वो गरीब नहीं है पर कैपिटा।
हाँ, और $1 इज इक्वल टू 20 रुपीज, 20.6 रुपीज। $1 जो हम ले रहे हैं इसमें, वो 85 रुपीज नहीं लेते हैं, वो 20.6 रुपीज लेते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ये एवरेज पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में है। $3 इज एवरेज, पूरे वर्ल्ड का ले रहे हैं एवरेज। तो उस हिसाब से $3 मतलब 60 रुपए या 62 रुपए, 62 रुपीज। एनीबडी पर कैपिटा, यानी भारत में गरीब कौन नहीं है जो 62 रुपए से अधिक कमा रहा है। फैमिली ऑफ 5 है तो इंटू 10 कर लो, सॉरी इंटू 5 कर लो, ये पर पर्सन है। तो अगर फैमिली 5 लोग हैं तो 62 इंटू 5 इज 310 रुपीज। यानी 300 रुपए से ऊपर एक परिवार अगर कमा रहा है 5 लोगों का भारत के अंदर, तो गरीब नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, उससे मतलब नहीं है, काम कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो मतलब नहीं है, मैं हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ। अर्निंग तो एक ही होगा, बाकी लोग डिपेंडेंट होंगे, या दो हो सकते हैं अर्निंग। पूरे फैमिली की जो हाउस होल्ड की इनकम है उसकी बात कर रहे हैं। तो हाउस होल्ड का खर्चा जो होना चाहिए वो 62 पर पर्सन मिनिमम होना चाहिए, तब वो पुअर नहीं है। अब जो डिपेंडेंट है वो नहीं अर्न करेंगे तो उनके लिए बाकी लोग अर्न करेंगे। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर कोई 400, अगर अपने आप से पूछो, अगर आप 1000 रुपये पर महीने कमा रहे हो, या आपके परिवार के लोग अगर 5000 रुपये या 3000 रुपये कमा रहे हैं, तो पावर्टी लाइन से आप बहुत ऊपर हो। एम आई राइट? पावर्टी लाइन से बहुत ऊपर हो। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? डू आई मेक सेंस? फैक्ट्स तो बेटा धीरे धीरे आएंगे गुरलीन, डोंट वरी, दिस इज अ प्रोसेस यू लर्न विद टाइम। ठीक है, तो ये मत सोचो कि आप अवेयर हो, अगेन इट इज अ प्रोसेस। आपको ऐसा आंसर आइडियली लिखना है जब आप यूपीएससी का मेंस लिखोगे। मैं आपको बता रहा हूं ये मॉडल आंसर है ना, तो मॉडल ऐसा दिख रहा है, इस मॉडल तक पहुंचने में 6 महीना 8-10 महीना लगेगा। आज सोचेंगे हम किसी के लिए मॉडल बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, तो मॉडल बनना चाहते हैं ना समाज के लिए, तो मॉडल बनने के लिए टाइम लगेगा। ठीक है बेटा, तो अब गरीबी को ओवरकम कैसे करो? गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम, वेज एम्प्लॉयमेंट, मनरेगा, एक्सेस ऑफ बेसिक कम्युनिटीज लाइक अफोर्डेबल हाउसिंग, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, जहाँ पे सरकार जो है राशन देती है फ्री। देन इनकम सपोर्ट मेजर, जैसे पीएम किसान है, सरकार अकाउंट में पैसा डालती है। एम्पावरमेंट मासेस थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल इंडिया, कौशल विकास योजना, ऐसे करके बहुत सारी स्कीमें हैं। टेक्नोलॉजी इंक्लूसिव गवर्नेंस में सरकार जो है टेक्नोलॉजी आधार को यूज करके बेनिफिट देती है आपको। तो इन तरीकों से हम लोग ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट में डाल सकता था, बट मैंने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स डाले हैं। आप इसमें 15 पॉइंट डाल सकते हो, बट चूंकि 150 वर्ड का आंसर लिखना है, सो यू कैन राइट, और सॉरी 250 वर्ड का आंसर लिखना है, तो यू कैन राइट ओनली लिमिटेड। आपके पास ओवरऑल मे बी 6 पॉइंट यहाँ, 6 पॉइंट ऊपर, एंड दैट इज अ रिक्वायरमेंट। ओके, अब देखो कंक्लूजन। India's poverty elevation strategy has evolved from welfare based to right based and targeted delivery model. पहले ही वेलफेयर बेस्ड था, अब राइट बेस्ड है। सरकार कहती है कि राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, ये सारी बातें हो रही हैं। राइट टू हेल्थ, सबको इंश्योरेंस मिलना चाहिए आयुष्मान भारत के तहत, गरीब को मिलना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड, स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन कैपिटल, फोकसिंग ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्पावरिंग लोकल गवर्नेंस एंड इरेडिकेटिंग पॉवर्टी सस्टेनेबली। तो ये सारे आपके मेजर होने चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग एक, मैंने मॉडल आंसर दिया। ये आइडियल है बेटा, इतने लेवल तक हमें पहुंच नहीं पाएंगे, जरूरत नहीं है। यू कैन राइट सिंपल ऑल्सो, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट यू हैव टू राइट अबाउट दिस अप्रोच। तो ये आपका एक मॉडल आंसर है, और आज का जो सेशन है वो इतना ही खत्म होता है। आई वुड नॉट गो इनटू मच डिटेल, बट आई वुड, इसमें जो एडवांस लेक्चर मैं दूंगा उसमें मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। इज दैट ओके? आपको ये पीडीएफ शेयर करूंगा तो देख सकते हैं, उसमें उसमें मॉडल आंसर्स भी हैं, यूपीएससी के मेन से क्वेश्चंस हैं, बट ठीक है, अभी उसमें वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। डोंट वरी अबाउट मच, बट एटलीस्ट कुछ आइडिया लगा आपको, गॉट सम होल्ड ऑफ द कैसे शुरू करना है, कैसे अप्रोच करना है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अंशिका, गुरलीन, सब समझ में आया? ओके, इट विल टेक सम टाइम टू रीच देयर, डोंट वरी। ठीक है बेटा, चलिए, सो आई एम स्टॉपिंग दिस सेशन। Anybody has any doubts?